This call is now being recorded. Now, today's topic is organism and population. Okay, so let us start. Our living world is fascinatingly diverse. We all know that, and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of biological organization. Macromolecules, cells, tissue, organs, individual organisms, population, communities, ecosystem, and biomes. These are all the part of our biological earth. At any level of biological organization, we can ask two types of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? Or why does the bird sing? The how type question seeks the mechanism behind the process, while the why type questions seek the significance for the process. For the first question in our example, the answer might be in terms of operation of the voice box and the vibrating bone in the bird. Whereas for the second question, the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blossoming flowers generally white? How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? And why does the cheek spores recognizes her own mother and so on? Now you have already learnt in previous classes that ecology is the subject which studies the interaction among organisms and between the organisms and its abiotic environment. So ecology is basically it is a subject which studies the interactions of organisms and its abiotic environment. Now ecology is basically concerned with four levels of biological organization. First organisms, second population, third communities, and four biomes. In this chapter we explore ecology at population levels. Now first is population. Now we all are aware about population. A population of different species do exist on earth. Now we'll study how they are interrelated and various factors about related to population. Now first is population attributes. Now in nature we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in groups in a well defined geographical area. ज़्यादा तो ज़्यादा population किस में रहती है? ग्रुप्स के अंदर रहती है. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा population ग्रुप पे रहती है. Now potentially groups were in a well defined geographical area, comma, share or compete for the similar resource, potentially interbreed and thus constitute a population. Population का यहाँ पे definition दिया है जो आपको boards के लिए भी important है. जो लोग ग्रुप में रहते हैं एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया में, शेयर द कॉमन रिसोर्सेस और उसके लिए कॉम्पीट भी करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस पॉपुलेशन का पार्ट है. ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम यहाँ पे इंटरब्रीडिंग को बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के रिलेटेड देखते हैं, बट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन. मेजोरिटी पार्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इंटरब्रीड को कंसिडर करते हैं, बट जो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी पॉपुलेशन का पार्ट है. ओके,
Now all the cormorants in a wetland, rats in an abandoned dwellings, teakwood trees in the forest track, bacteria in the culture plate, and lotus plant in the pond are some examples of population. In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that nature's selection operates to evolve the desired traits. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population, genetics and evolution. हमने evolution चैप्टर में भी देखा था कैसे नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन उसके ट्रेट्स उसके स्पीशीज पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जो भी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है जिस भी ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर जो भी मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस दिख रहे हैं वो नेचुरल सिलेक्शन जो कि जेनेटिक्स में हुए चेंजेस और ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस करता है या बताता है. तो पॉपुलेशन ऐसे टाइप की स्टडीज के लिए या एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ओके, नाउ a population has certain attributes where an individual organisms population is a certain attribute where an individual organisms does not. An individual may have births and death, but the population has birth rates and death rates. In a population, these rates refer to per capita births and death. The rates hence express are change in number, increase or decrease with respect to member of the population. Here is an example. If in a pond there are 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added, not taking the current population to 28, we can calculate birth rate. Birth rate कितना होगा? New population added upon एक जो पुराना old population total का था. तो कितना हो जाएगा? 8 population बढ़ा है out of कितने में से 20. तो बर्थ रेट कितना हो जाएगा 8/20 तो 0.4 offspring per lotus per year. Okay, if 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population will be 4/40. 40 में से 4 मर गए तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक मरे हैं. तो ऐसे डेथ रेट और बर्थ रेट हमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पॉपुलेशन में काउंट करने के लिए हेल्प करते हैं. Now, another attribute characteristic of a population is sex ratio. Now, sex ratio हमें पता है पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उस पॉपुलेशन में क्या है सेक्स रेशो, मेल इज टू फीमेल रेशो. ये हेल्प करता है उसकी पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए कि वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में जाएगा, रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में जाएगा या स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ जाएगा. एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल. But a population has a sex ratio. Example 60% of the population are females and 40% are males. ये कुछ एग्जाम्पल है कि हम सेक्स रेशियो को किसी पॉपुलेशन में ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं. A population at any given time is composed of individuals of different ages. कोई भी एक टाइम पे गिवन पॉपुलेशन पे एक पॉपुलेशन जो होगी उसके अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज रहेगी एज ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट. नाउ इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल is plotted for a population, the resulting structure is called as age pyramid. अगर हम डिफरेंट एज ग्रुप को पॉपुलेशन के टर्म में प्लॉट करें तो वो एक एज पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. Now for human population, the age pyramid is generally show age distribution of males and females in a diagram. The shape of pyramid reflects the status of the population. जैसे मैंने बोला कि पिरामिड हमें पॉपुलेशन की स्टडी में मदद करेगा. तो 3 टाइप के पॉपुलेशन स्टडी हो सकते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, वेदर इट इज ग्रोइंग या स्टेबल या डिक्लाइनिंग, 3 पॉपुलेशन पिरामिड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया है,
एक्सपांडिंग दिया है, स्टेबल दिया है, डिक्लाइनिंग। इसमें थ्री टाइप्स हैं पॉपुलेशन में, देखो अलग अलग कलर से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब ओल्ड एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव मतलब जो एडल्ट हैं और जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं। एंड प्री रिप्रोडक्टिव मतलब चाइल्ड्स जो प्री प्यूबर्टी एरा में है। तो पॉपुलेशन की जैसे पहला वाला जो पॉपुलेशन है वो एक्सपांडिंग है। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव होंगे, फिर रिप्रोडक्टिव होगा, एंड फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा। तो जब भी प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा प्री, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देन ऐसे पॉपुलेशन को हम एक्सपांडिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। अगर स्टेबल की बात करें तो स्टेबल पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट बैलेंस हो, तो और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो पर वो भी क्लोज हो रिप्रोडक्टिव के, तो ऐसे पॉपुलेशन स्टेबल रहते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव वाला रिप्रोडक्टिव में जाएगा, रिप्रोडक्टिव वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले डेथ में जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा शिफ्ट नहीं है नंबर्स का, तो ऐसे पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं, जिसमें ना तो एक्सपांडिंग नेचर दिख रहा है और ना ही डिक्लाइनिंग नेचर दिख रहा है। तीसरा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, उसमें आपको देखोगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दिखेगा और वो भी डिक्लाइनिंग फॉर्म में, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो कम रहेंगे। तो हमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हिसाब से जस्टिफाइड करना है कि पॉपुलेशन कौन सा है। तो आपको नीट में ये टेबल आ सकता है कि ये कौन सा पॉपुलेशन है। ओके, नाउ द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अ लॉट about its status in the habitat. Wherever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with other species, the impact of predator, or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of change in the population size. The size in nature could be as low as less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year to the millions Chlamydomonas in a pond. Population size कुछ भी हो सकती है। Population size technically is called population density designated as n. Population number कितना है उसको हम designate करते हैं population density से या capital N से। Need not necessarily be measured in numbers only. Although total numbers is generally the most appropriate measures of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 carrots grass, Parthenium hysterophorus, ये grass का नाम है scientific plants, but only a single use banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan trees low related to that of carrot glass amount due to underestimating that enormous role of banyan in that community. In such case, the percent cover of biomass is more meaningful measure of the population. Now, total number is again not an easily adoptable measure if population is huge and counting is impossible or very time consuming. तो हम लोग टोटल नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते काउंटिंग में, इनफैक्ट डेंसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार नंबर काउंट करना पॉसिबल नहीं है। नंबर काउंट करने के अंदर पॉसिबल ना हो या वेस्टेज ऑफ टाइम हो, उस केस में हम डेंसिटी के थ्रू ही जजमेंट लेते हैं पॉपुलेशन की। Now, sometimes for certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population densities. A relative density serves the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure for its total population density in the lake. We are almost obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on the pug marks and
फीकल पैलेट्स, हम टाइगर के काउंट्स नेशनल पार्क में विद रिस्पेक्ट टू देयर जो पैर के मूवमेंट्स के जो निशान बनते हैं सॉइल पे पग मूवमेंट उसके थ्रू या तो फीकल पैलेट्स के थ्रू गिनते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है. ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ. The size of population for any species is not a static parameter. It keeps changing with time. ये तो हमें पता है पॉपुलेशन हर एक पर्टिकुलर टाइम में या तो एक्सपांडिंग होगी या तो रिडक्टिव होगी या तो स्टेबल होगी. Now, depending on various factors including food availability, predation, pressure, and adverse weather, in fact, is these changes in population density that gives us some idea of what is happening in the population. Whether it is flourishing or declining, whatever might be the ultimate reason, the density of the population in the given habitat during a given period fluctuate due to changes in four basic process. तो ये चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी ड्राई है बट अपने को सिर्फ वो पॉइंट्स को टारगेट करने हैं जिसमें नीट टारगेट करता है और बोर्ड्स के लिए आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा. ओके, तो चार फैक्टर्स के ऊपर हमें देखनी है पॉपुलेशन को. पहला है नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन एंड एमिग्रेशन. इसके ऊपर एक नीट में क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, कि आपको पूछा गया है कि पॉपुलेशन एक्सपांडिंग है या स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है. आपको कुछ फैक्टर्स दिए रहेंगे. बर्थ रेट दिया रहेगा मान लो 10, डेथ रेट दिया रहेगा 8, इमाइग्रेटेड पॉपुलेशन दिया रहेगा और एमिग्रेशन. तो आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके पॉपुलेशन में नेट चेंज कितना हुआ है वो बताना है कि एक्सपांडिंग है, डिक्लाइनिंग है या स्टेबल है. ओके, तो आपको टर्म्स पता होने चाहिए, वो मोर देन इनफ है. नेटेलिटी का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट बर्थ रेट ही होता है. नाउ natality refers to number of births during a given period of time in a population that are added to the initial density. Mortality क्या है? Number of deaths in population during a given period. Mortality का मतलब होता है death. Natality का होता है birth. Now immigration का मतलब होता है कितने लोग एक न्यू इंडिविजुअल जगह पे माइग्रेट किए. इमाइग्रेशन को हम ऐसा भी याद रख सकते हैं, आई एम माइग्रेटिंग. इमिग्रेशन को आई एम माइग्रेटिंग याद रखो तो हम जहाँ माइग्रेट करेंगे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. तो इससे याद रख सकते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन गेन होगा इमाइग्रेशन से. सिमिलरली नेटेलिटी से भी पॉपुलेशन गेन होगा बट मोर्टेलिटी से पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी. नाउ इमाइग्रेशन इज एमिग्रेशन इज it is the number of individuals of same species that have come into habitat from elsewhere during the time period under consideration. Number of individuals of the same species that have came into habitat from elsewhere during the time period under consideration. Now, emigration is the number of individual of the population who has left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. तो जैसे एग्जांपल ले लें हम, कुछ लोग चंडीगढ़ से मोहाली गए, तो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन से जो लोग मोहाली की तरफ शिफ्ट हुए तो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन में एमिग्रेशन हुआ वेरस मोहाली की पॉपुलेशन में इमिग्रेशन हुआ. तो इमिग्रेशन जो है आय वाला उसमें एक जगह पे गेन होगा वो इंडिकेट करेगा एंड एमिग्रेशन जो है वो वो एग्जिट या तो पॉपुलेशन डिक्लाइन इंडिकेट करेगा. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है तो आपको बस पता होना चाहिए n प्लस आई माइनस एम प्लस ई ये आपको पॉपुलेशन गेन बताएगा. यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी नेटेलिटी बताएगी इसलिए उसको प्लस से इंडिकेट किया है. इमिग्रेशन भी इंडिकेट करेगा पॉजिटिविटी, उसको भी प्लस से किया है. मोर्टेलिटी को उन्होंने माइनस इंडिकेट किया कि उसकी वजह से पॉपुलेशन उस एरिया में कम हो जाएगा. एंड एमिग्रेशन के अंदर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा ये इंडिकेट करेगा. तो दो फॉर्मूला हो गए, एन प्लस आई माइनस एम प्लस ई ये इंडिकेट करेगा नेट पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं. तो आपको न्यूमेरिकल आ सकता है तो इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया है. इसमें थोड़ा सा उसमें बढ़ा ही दिया है. अब बस इतना ही याद रखो, एन प्लस आई माइनस एम प्लस ई. ओके, तो ये याद रहेगा तो अपने आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे.
Now you can see from the above equation that population density will increase if the number of birth plus the number of immigration, B plus I, is more than the number of death plus the number of emigration. अगर B plus I D plus E से बड़ा रहेगा तो पॉपुलेशन एक्सपांडिंग रहेगा, जबकि वाइस वर्सा का केस होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। और अगर स्टेबल होगा B plus I is equal to D plus E, then population will be stable. Okay. Under normal condition, births and deaths are the most important factors influencing population density. The other two factors assuming importance only under special conditions. For instance, if a new habitat is just being colonized, emigration may contribute more significance to population growth than birth rate. इन्होंने दिया है किस कौन कौन सा फैक्टर, कभी कभी इमिग्रेशन, कभी कभी बर्थ रेट, दोनों भी रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। ना ग्रोथ मॉडल्स क्या क्या है? डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन with time show specific and predictable pattern? So we have been considered about unbridled human population growth and problems created by it in our country. And it's therefore a natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on its growth. Perhaps we can learn a lesson or two from the nature of how to control population growth. देखो, ग्रोथ पर्टिकुलर पॉपुलेशन की कितनी है, इट अफेक्ट्स द रीजन कि कितना उसके अंदर ग्रोथ रेट है या कितना रिसोर्स अवेलेबल है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है ना। यहाँ पे कैसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल चेक करते हैं, वो एक्सपोटेंशियल या दो ग्रोथ से चेक करते हैं, एक्सपोटेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो सबसे पहले एक्सपोटेंशियल ग्रोथ देखेंगे। एक्सपोटेंशियल मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वेयरएज लॉग इज द सेकंड B1। देखो इसमें एग्जांपल भी दिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। व्हेन द रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, जो कि इमेजिनरी कंडीशन ही होती है। ऑलमोस्ट ए वाला ग्राफ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशन है। सबसे ज़्यादा जो रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन कर्व हम पढ़ते हैं वो बी होता है, वेयर रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ एंड प्लॉट इज लॉजिस्टिक। एंड जहाँ पे वो सैचुरेट हो रहा है, जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, दैट इज के और कैरिंग कैपेसिटी। जैसे अर्थ, अर्थ के ऊपर ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस पॉपुलेशन बढ़ते जाए और अर्थ कैन हैव एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नहीं। अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी 50 बिलियंस है एंड वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट क्लोज टू 9 बिलियन है। तो और 41 बिलियन दे कैन एकोमोडेट, बट उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, वाटर, मिनरल्स और बाकी सब चीज़ों, देयर विल बी कंटिन्यूसली, देयर कांट बी ए कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेस इन द पॉपुलेशन। तो हम सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक वाला जो ग्राफ है वो बेसिकली यूज करते हैं या वही एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। जो एक्सपोटेंशियल है वो जस्ट एक इमेजिनरी कंडीशन, क्योंकि रिसोर्सेज जब बहुत सारे होंगे देन ये पॉसिबल है। और अर्थ के ऊपर तो ऐसा कुछ एक भी स्पीशीज नहीं है जिसके ऊपर रिसोर्सेज कभी भी खत्म ना हो, इसलिए ये पार्ट बहुत रेयरली देखने को मिलता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिसोर्सेस का मेजर रोल रहेगा, चाहे वो लॉजिस्टिक हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल कर्व हो। Now resources, food and space availability is obviously essential for the unimpeded growth of the population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. इन्होंने बोला है कि अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रहा तो हर एक स्पीशीज अपने पोटेंशियल तक ग्रो कर सकती है। Each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. As Darwin observed while developing his theory of natural selection, then the population growth is an growth in an exponential or geometric fashion. If the population of size n, the birth rate
not total number per capita births are represented as B, and the death rates again per capita death rate as D, then the increase in number. एक्सपोनेंशियल का जो इक्वेशन होता है वो dn बाई dt डिफरेंशिएट करके बर्थ माइनस डेथ इनटू n पॉपुलेशन डेंसिटी, और b माइनस डी को हम r सपोज कर लें तो dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन, ऐसा एक फ्रैक्शन बनेगा जो पॉपुलेशन की एक्सपांडिंग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए एक इक्वेशन है जो काफी कॉमनली एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जो पॉपुलेशन स्टडी को वर्क करते हैं उनको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं. नाउ दिस आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट of the natural increase and is very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on population growth. To give you some idea about the magnitude of R values, the Norway rate of R is 0.015 and the floor beetle it is 0.12. In 1981, the R value for human population of India was 0.0205. ओके, तो आर हमें बेसिकली क्या करेगा, इंट्रिंसिक रेट कितना नेचुरली इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन डेथ माइनस बर्थ के डिफरेंस के बाद, दैट इज द इंट्रिंसिक रेट. तो इंडिया का पॉपुलेशन इंट्रिंसिक रेट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 0.0205 ये इंडिया का है. नॉर्वे के रैट का आर है 0.015, वेरस फ्लोर बीटा का है 0.12. ओके, now the above equation describes the exponential or geometric growth pattern of the population and results in a J shape का. अब देख पा रहे होंगे जो रेड वाला है वो पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल का कर्व का नेचर पूछते हैं, तो कौन से कर्व है वो J शेप का कर्व है. When we plot n in relation to time, if you are familiar with basic calculus, now you can derive the integral form of exponential growth equation as nt is equal to n nod ert, where nt क्या है population density, n nod क्या है population density at time 0, r is intrinsic rate and e is the natural log 2.71828. नाउ ये एक जनरल इक्वेशन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसके ऊपर कोई टर्म नहीं आता. नाउ एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम, बट ये पॉसिबल होता नहीं है. डार्विन showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of chicks. The following is an anti The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically कैसे exponential growth शो करता है. ये आपको पता होगा कि एक किंग था और उसने एक चेस का गेम रखा. किम कॉन्फिडेंट था चेस जीतने को और जो भी बेट उसको प्रपोज करते वो उसको देते. तो मिनिस्टर्स बोले अगर हम जीते तो हम उसको व्हीट ग्रेन्स देंगे. मिनिस्टर बोला कि अगर हम जीते तो आपको फूड ग्रेन्स देना होगा. किंग आराम से मान गया. किंग ने सोचा ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट मांग रहा है, तो उसने बोला था हर एक स्क्वायर के हिसाब से हम मुझे स्क्वायर करके देना पड़ेगा. मतलब स्क्वायर्स में टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं, तो फर्स्ट स्क्वायर में एक फूड ग्रेन, सेकेंड में 2, थर्ड में 4, फिर 8, फिर 16. ओके, ऐसा 4 स्क्वायर में स्क्वायर रूट करते जाना है, सो ऑन डबलिंग. और 64 स्क्वायर्स पहुंचने से पहले ही किंग को लगा ये तो बहुत ही सिली वेट है, उसने तुरंत एक्सेप्ट किया. बट उसके कुछ ही टाइम के बाद जैसे ही उसने 30 to 40 बॉक्सेस पहुंचे तो उसमें इतना फूड ग्रेन्स चाहिए था कि उसके पूरे किंगडम में नहीं था. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर फैक्टर्स अनलिमिटेड हो तो इतना एक्सपांड कर सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ये स्टोरी आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाया है. Now you think a tiny paramecium starts with just one individual and through binary fission doubles in number every day, and imagine what a mind
boggling population side, it would reach in 64 days, provided food and space remain unlimited. ओके, तो आज के लिए इतना ही. आप एक बार घर पे स्टडी कर लेना है इतना पार्ट, और कल के लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं बायोटेक एप्लीकेशन के क्वेश्चंस डाउनलोड कर लिए हैं, कल हम वो सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये आप एक बार घर पे पढ़ के आना. नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को यूज करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.